Good morning, all students. So, today, in the next session of the first module lecture, we will discuss about what are the uses of engineering in biological field. So, we discussed about the introduction of engineering, about what is biology and the different branches of biology that are mostly employed in the engineering field. We also discussed why do we need to study biology being an engineering students. So we have dealt all this part in the first lecture, and continuing with the first lecture, now we will study the use of engineering in biology. So engineering is used in medicine. Medicine is very much linked with medicine, and biology is very much linked with engineering field. Here you can see a clinical MRI scanner. We all know what does a scanner does. It scans the whole body, but this scanner is an engineering tool. ये स्कैनर क्या है? ये एक इंजीनियरिंग टूल है. इसे कोई एक बायोलॉजिस्ट तो नहीं बना सकता. इसमें मशीन से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसे किसी न किसी इंजीनियर ने ही बनाया होगा. So engineering is very much employed in the biology. But the person who made, or the engineer who made this instrument, must also know the biology of the human being. Then only he would be able to make this kind of tool for medicine. जो भी इंजीनियर है उसे ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसा है ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो उस रेस को पेनिट्रेट करा सके और तब जाकर वो स्कैन कर सके उस इमेजेस को. इसलिए इंजीनियरिंग फील्ड also needs to study the biology to make different tools for biology. So the study of human body, albeit from different directions and for different purposes, is an important common link between medicine and some engineering disciplines. मेडिसिन और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के बीच में ये एक बहुत ही कॉमन लिंक है कि डिफरेंट बॉडी, ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट पर्पसेस से स्टडी करने में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा यूज होता है. Medicine aims to sustain, repair, enhance and even replace functions of human body, if necessary through the use of technology. बहुत बार हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि मेडिसिन में डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग रिपेयर करें, एनहांस करें या रिप्लेस करें. जैसे इन द लास्ट क्लास आई हैड गिवन एग्जांपल ऑफ पेस मेकर और आर्टिफिशियल लिम्ब और हियरिंग एड और लेंसेस इन द आईज. What are these? These are all engineering tools but employed in the medicine. ये सब क्या है? सभी के सभी इंजीनियरिंग टूल्स ही हैं, पर ये सब के सब मेडिकल ब्रांच में यूज होते हैं. Now, modern medicine can replace several of the body's functions through the use of artificial organs and can significantly alter the function of the human body through artificial devices, such for an example, brain implants and pacemakers. आज के मॉडर्न मेडिसिन में बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के थ्रू हम रिप्लेस कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं. जैसे कि ब्रेन इम्प्लांट, बहुत जगह ब्रेन इम्प्लांट भी होते हैं. कहीं कुछ अगर नर्व्स वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो ब्रेन का इम्प्लांटेशन होता है. दैट इज एन आर्टिफिशियल टूल दैट वी इम्प्लांट इन द ब्रेन. पेस मेकर, इंस्टेड ऑफ हार्ट, an artificial heart, that is pacemaker, is placed. Okay. The field of bionics and medical bionics are dedicated to the study of synthetic implants pertaining to natural system. Bionics और medical bionics वही ब्रांच है जो कि सिंथेटिक इम्प्लांट करता है नेचुरल सिस्टम में. जो नेचुरल बॉडी है उसके अंदर इन सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑर्गन्स या आर्टिफिशियल टूल्स को इम्प्लांट करना, दैट इज बायोनिक्स. तो बायोनिक्स ब्रांच में इन्हीं की स्टडी करते हैं हम. Conversely, some engineering disciplines view the human body as a biological machine worth studying and are dedicated to emulating many of its functions by replacing biology with technology. अब इसका कन्वर्स भी, उल्टा भी होता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो हैं वो ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह स्टडी करते हैं. हाउ डज द ह्यूमन बॉडी वर्क,
और उसी के अकॉर्डिंगली वो कुछ टूल्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजी को हटा करके वहाँ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू मेक डिफरेंट टूल्स. This has led to fields such as artificial intelligence, neural networks, fuzzy logic and robotics. यही ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, फजी लॉजिक और रोबोटिक्स का. रोबोट में भी क्या है? इट फंक्शंस लाइक ह्यूमन बॉडी बट इट इज अ टूल, इट इज एन इंजीनियरिंग टूल. ह्यूमन मशीन को स्टडी करके उसी के अकॉर्डिंगली रोबोट्स बनाए गए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत ज़्यादा आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या है? ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करके उसी के जैसा हम भी आर्टिफिशियली वैसा न्यूरल सिस्टम बनाएंगे और उसको हम लोग एग्जिबिट करेंगे, ताकि जिस तरह से ये अभी तक जितना भी हम कंप्यूटर सिस्टम्स है, इट कैन अंडरस्टैंड ओनली यस और नो, 0 और 1, दो ही लॉजिक समझते हैं. बट देयर आर n नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1. आप सभी लोग पढ़े हुए होंगे मैथ्स में रियल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में. तो आप लोग जानते होंगे कि 0 और 1 के बीच में n नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं और उनका भी तो कुछ वैल्यू है. तो 100% ट्रू और 100% फॉल्स के बीच में कुछ ऐसे भी लॉजिक्स हैं जो पार्शियली ट्रू या पार्शियली फॉल्स होते हैं. उनको अभी तक कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं एनालाइज कर पाता है. तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम उसी लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, उसी लॉजिक को हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एज इट इज इन द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी. देयर आर ऑल्सो सब्सटैंशियल इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शंस बिटवीन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन. ऐसे ही बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शंस हैं इंजीनियरिंग और मेडिसिन के बीच में. Bionics. Now, what is bionics? Bionics, or biologically inspired engineering, is the application of biological methods and systems found in nature to the study and design of engineering systems and modern technology. Bionics क्या है? Application of biological methods or systems found in nature. जो नेचर में biological systems और methods पाए जाते हैं, उनको अप्लाई करते हैं to study and design of engineering systems एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड या सिस्टम्स हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं. उसके एप्लीकेशन से हम लोग नए नए टूल्स बनाते हैं. दैट इज बायोनिक्स और बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग, जो बायोलॉजी से इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग है. ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं. Is the intelligence demonstrated by machines unlike the natural intelligence displayed by humans and animals. ये वो इंटेलिजेंस है जो मशीन्स शो करते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन. जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसी की तरीके से जैसे ह्यूमन या एनिमल्स नेचुरल इंटेलिजेंस शो करते हैं, उसी तरीके से मशीन्स भी इंटेलिजेंस शो करें. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Colloquially, the term artificial intelligence is often used to describe machines that mimic cognitive functions that humans associate with the human mind, such as learning and problem solving. अब जिस तरीके से ह्यूमंस अपने ह्यूमन माइंड को यूज करके लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टास्क को करते हैं, उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन्स यूज करके और उसी चीज को मिमिक करेंगे. उसी तरीके से ये भी अपना लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को कंप्लीट करेंगे. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. न्यूरल नेटवर्क. Neural network is a network or circuit of neurons, or in a modern sense an artificial neural network composed of artificial neurons or nodes. न्यूरल नेटवर्क क्या है? इट इज अ नेटवर्क और सर्किट ऑफ न्यूरॉन्स. जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उसी तरीके से मॉडर्न सेंस में न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं. ये न्यूरॉन्स क्या हैं? दीज आर आर्टिफिशियल नेटवर्क. हमारे बॉडी में नेचुरल न्यूरॉन्स हैं मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, और हम आर्टिफिशियली उसी तरह का न्यूरॉन नेटवर्क बनाते हैं. जिस तरह हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स हैं जो कि पूरे माइंड को, ब्रेन को और पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, उसी तरीके से वी मेक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम composed of artificial neurons or nodes. Thus, a neural network is either a biological neural network made up of real biological neurons or an artificial neural network for solving artificial intelligence problems.
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉल्व आउट करने के लिए हम इस तरह का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा, एक इनपुट लेयर होगा, देन एक हिडन लेयर होगा एंड देन एन आउटपुट लेयर होगा। इनपुट लेयर मैसेज लेगा, हिडन लेयर में वो प्रोसेसिंग होगा एंड देन इट विल गिव द आउटपुट थ्रू आउटपुट लेयर। Now in fuzzy mathematics, the fuzzy logic is a form of many valued logic in which the truth values of variables may be in any real number between 0 and 1, both inclusive. It is employed to handle the concept of partial truth where the truth value may range between completely true and completely false. जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को समझ सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी n नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो उन वेरिएबल वैल्यूज को, उन ट्रूथ वैल्यूज को समझने के लिए, उन जो कि पार्शियली ट्रूथ हो सकते हैं या पार्शियली फॉल्स हो सकते हैं, जो वैल्यूज इन दो के रेंज के बीच में आए, उन वैल्यूज को समझने के लिए जो लॉजिक यूज हो रहा है दैट इज फजी लॉजिक। By contrast, in Boolean logic, the truth values of variables may only be the integer values. Boolean algebra में क्या है? It can only understand 0 and 1, only two values, either true or false. A robot is a machine, especially one programmable by a computer, capable of carrying out a complex series of actions automatically. Robot क्या है? It is a machine. कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम किया हुआ एक मशीन है जो कि कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस को ऑटोमेटिकली कर लेता है, अपने आप से ही बहुत सारे एक्शंस को कर सके, दैट इज रोबोट। बोथ फील्ड्स प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, बी इट बायोलॉजी और इंजीनियरिंग। दोनों फील्ड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस देते हैं। दिस ऑफन रिक्वायर्स moving forward before phenomena are completely understood in a more rigorous scientific sense, and therefore experimentation and empirical knowledge is an integral part of both. इसके लिए क्या चाहिए? Moving forward before phenomena are completely understood in a more rigorous scientific sense means क्या है? हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें रिगरस साइंटिफिक सेंस होना चाहिए। और ये रिगरस साइंटिफिक सेंस कैसे आएगा? थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और एम्पेरिकल नॉलेज। तो जो एम्पेरिकल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है और एक्सपेरिमेंटेशन है, इन सब के कॉम्बिनेशन से हमें साइंटिफिक सेंस होगा, और साइंटिफिक सेंस से हमें इन फेनोमेना के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। सो वी नीड टू हैव द एम्पेरिकल नॉलेज, और एम्पेरिकल नॉलेज जानने के लिए हमें बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। मेडिसिन इन पार्ट स्टडीज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी एज अ बायोलॉजिकल मशीन हैज मेनी फंक्शंस दैट कैन बी मॉडल्ड यूजिंग इंजीनियरिंग मेथड्स। मेडिसिन में अगर स्टडी करना है फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अ बायोलॉजिकल मशीन, एक मशीन की तरह है। इसका बहुत सारा फंक्शन है जिसको कि हम मॉडल कर सकते हैं इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू, और हम लोग यूज में ला सकते हैं। जो भी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे सपोज डैट हम डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलता है, अगर सपोज वी कैन मेक सम टूल which can digest food as our stomach does in the body, if it can digest outside, तो वो लोग जिन्हें डाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन और मॉडल्ड बाय यूजिंग द नॉलेज फ्रॉम द बायोलॉजिकल मशीन। द हार्ट फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस मच लाइक अ पंप। हार्ट जो है एक पंप की तरह ही काम करता है। The skeleton is like a linked structure with levers. Skeleton क्या है? वो भी एक linked structure है levers की तरह। जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे जॉइंट्स वगैरह, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ऐसे हिंज जॉइंट है, नकल जॉइंट है, इस तरह से हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। और हमारे बॉडी में भी वैसे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। द ब्रेन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ब्रेन भी क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।
These similarities, as well as the increasing importance and application of engineering principles in medicine, led to the development of the field of biomedical engineering. यही सब समानता और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का मेडिसिन में, उनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आना, इन्हीं सब की ज़रूरत के कारण एक ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ, डैट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डैट यूजेस कंसेप्ट डेवलप्ड इन बोथ डिसिप्लिन्स. और जब ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आया, जो कि दोनों कंसेप्ट इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल या मेडिसिन फील्ड के दोनों के नॉलेज को कंबाइन करके और कुछ नया टूल्स टेक्निक्स डेवलप करने का जो ब्रांच हुआ, दैट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. इसीलिए हमें दोनों ब्रांचेस की स्टडी की आवश्यकता पड़ गई. Newly emerging branches of science such as systems biology are adapting analytical tools traditionally used for engineering, such as systems modeling and computational analysis to the description of biological systems. अब जो नए emerging branches है साइंस के, जैसे सिस्टम बायोलॉजी, ये एनालिटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं. जो इंजीनियरिंग में ट्रेडिशनली यूज़ होता है वैसे एनालिटिकल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉडलिंग या कंप्यूटेशनल एनालिसिस है, ताकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर सके. बायोलॉजिकल सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंजीनियरिंग के मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं, दैट इज सिस्टम्स बायोलॉजी. For example, to tackle COVID-19, many engineering tools like automatic sanitizer, automatic medicine dispenser, 3D mask, etc. have been developed. ये सब किसने किया है? एक इंजीनियर ने किया है. These are all engineering tools, but these are all applicable in the medicine. So, medical field is very much related or interdependent to the engineering field. And for making all these instruments, the engineer needs to know the biology. What are the requirements? Then only he can make all these instruments. That's why he need to study biology. Now, bioengineering. Bioengineering or biological engineering is the application of principles of biology and tools of engineering to create usable, tangible, economically viable products. Bioengineering या biological engineering वो ब्रांच है जिसमें कि हम बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को और इंजीनियरिंग के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यूजेबल, टेंजिबल और इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट्स बना सकें. बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस. अब बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं रहते हैं, बल्कि इसमें नंबर ऑफ एक्सपर्टाइज और नंबर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस का नॉलेज और एक्सपर्टाइज लगता है, जैसे मास एंड हीट ट्रांसफर, काइनेटिक्स, बायोकैटलिस्ट, बायोमैकेनिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस, बायोरिएक्टर डिजाइन, सरफेस साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, thermodynamics and polymer science. All these are various different branches of pure and applied sciences, but all these are applicable in biological engineering. You need to have knowledge and expertise of all these fields. It is used in the design of medical devices, diagnostic equipment, biocompatible material, renewable bioenergy, ecological engineering, agricultural engineering, and other areas that improve the living standards of societies. अब इसके लिए हमें क्या करना है? ये बायो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? मेडिकल डिवाइसेस बनाने में, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स बनाने में, जैसे अभी कोविड-19 में फास्ट डायग्नोस्टिक किट बनाया गया, क्विक डायग्नोस्टिक किट्स, बायोकम्पैटिबल मटेरियल, बहुत से ऐसे मटेरियल हो जो कि बायोकम्पैटिबल हो, रिन्यूएबल बायो एनर्जी जैसे जेट्रोपा का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल बायोडीजल के रूप में, इकोलॉजिकल बायो इंजीनियरिंग, वैसे इंजीनियरिंग करे जो कि इकोलॉजिकली सेफ हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के केस में बहुत सारे मैनिपुलेशंस करके हम नए नए टेक्निक्स के थ्रू नए नए टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स डेवलप करें, एंड अदर एरियाज डेट इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड हम अच्छा कर सकें. एग्जाम्पल्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग रिसर्च इंक्लूड बैक्टीरिया इंजीनियर टू प्रोड्यूस केमिकल्स. बहुत सारे बैक्टीरिया को हम लोग इंजीनियरिंग करके बहुत सारे के केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं.
न्यू मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इमेजिंग टेक्नोलॉजी बना सकते हैं ताकि हम बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को स्कैन कर सके. पोर्टेबल एंड रैपिड डिजीज डायग्नोस्टिक डिवाइसेस बनाए जो कि पोर्टेबल हो, रैपिड हो. प्रोस्थेटिक्स मीन्स किसी भी एंजाइम या किसी भी कैटालिस्ट के साथ में अटैच होने वाला वो ग्रुप जो कि उस रिएक्शन को फास्ट कर सके. बायोफार्मास्यूटिकल्स मीन्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स. Tissue engineered organs means we can artificially make different types of organs or tissues for the body. Suppose that किसी का हाथ अगर कट गया है and we can replace the hand. किसी का आँख अगर नहीं काम कर रहा है, आँख खराब हो गया है या अंधा हो गया है, we can put artificial eye which is as compatible as the natural eye, which can even see and do all other functions as the natural eye can do. But till now that type of eye has not been developed, which is yet to be discovered. इसलिए अभी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ स्कोप टू डू. Bioengineering overlaps substantially with biotechnology and the biomedical sciences in a way analogous to how various other forms of engineering and technology relate to various other sciences. अब बायोइंजीनियरिंग जो ये बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेस के साथ में मिला हुआ है, इन दोनों को मिला करके बायो इंजीनियरिंग करते हैं. जैसे कि और भी अदर फॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो अदर साइंसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड अदर स्पेस टेक्नोलॉजी टू काइनेटिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है. उसी तरीके से बायो इंजीनियरिंग इज रिलेटेड विद बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंसेस एप्लीकेशंस. In general, biological engineers or biomedical engineers attempt to either mimic biological systems, to create products or modify and control biological systems so that they can replace, augment, sustain or predict chemical and mechanical process. बायोलॉजिकल इंजीनियर जो है वो या तो बायोलॉजिकल सिस्टम का नकल करते हैं so the biological engineers, they either mimic the biological systems to create products or modify and control biological systems so that they can replace, augment, sustain or predict chemical and mechanical processes. जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको या तो वो लोग नकल करते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि कुछ नया रिप्लेसमेंट कर सके, कुछ उसमें ऐड कर सके, कुछ सस्टेन कर सके या कुछ केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस को प्रेडिक्ट कर सके. Bioengineers can apply the expertise to other applications of engineering and biotechnology. Bioengineers जो है वह अपने एक्सपर्टाइज को इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के अदर एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं. So bioengineers, they apply the expertise in the to other applications of engineering and biotechnology. जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स का, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या बायोकैटालिसिस के फील्ड में भी वो अपने एक्सपर्टाइज को यूज़ कर सकते हैं. और वर्किंग विद डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस एंड रिसर्चर्स, बायो इंजीनियर्स यूज ट्रेडिशनल engineering principles and techniques and apply them to real world biological and medical problems. अब डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस और रिसर्चर्स के साथ में काम करके बायो इंजीनियर्स जो है ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड बायोलॉजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स में. जो भी रियल वर्ल्ड बायोलॉजिकल या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व आउट करने के लिए जो भी इंजीनियरिंग टूल्स या प्रिंसिपल्स अवेलेबल है उनको यूज़ करते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें. सो दिस इज व्हाट बायो इंजीनियरिंग इज एंड व्हाट डज अ बायो इंजीनियरिंग डू एंड हाउ डज दे डू ऑल दिस थिंग्स. So that's all for the today's lecture. In the next lecture, we'll deal about the different aspects of biological engineering and different fields, how the different fields are interrelated, how does this thermodynamics or Brownian motion, all these things are interrelated with the biology. That's all for today. Thank you very much.